ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ فیصل آباد کے عوام بھی اشیاء ضروریہ اور کھانے پینے کے سامان کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کی وجہ سے شدید مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ۔ مزید دیکھتے ہیں محمد نسیم شاہ کی یہ رپورٹ۔ بدترین مہنگائی کی وجہ سے فیصل آباد کے عوام بھی انتہائی مشکلات اور شدید پریشانی کا شکار ہے۔ کھانے پینے اور اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ قوت خرید میں کمی کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا بھی محال ہو چکا ہے۔ جو حالات پاکستان میں نا پوری دنیا میں نے نہیں دیکھے، انڈیا اور پاکستان اتنی مہنگائی ہے، ایسی مہنگائی ہے، غریب آدمی مرنے پہ خود نوشی کر رہے ہیں، کیونکہ تو چیز ہونے جائے یہ کتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے، اس کے پاس ایسے نہیں ہوتے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، بہت ہی زیادہ۔ حکومت کو چاہیے کہ لوکل عوام کے لیے تو کچھ پیکیجز اس طرح کے نکال لینا، پھر ان کو تو ہر جگہ پھر رعایت ہونی چاہیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کے خاتمے اور عوامی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ گوشت ڈبل قیمت پہ، وہ بھی خالص نہیں، دودھ بہت زیادہ مہنگا، سبزیاں وہ جو 200 روپے کی چیز تھی آگے 1000 روپے میں پورا تھیلا آتا تھا سبزیوں کا، اب 1 کلو کو چیز آتی ہے بے مشکل۔ غریب آدمی کا بالکل پچھے رہ گیا، صبح سے لے کر شام تک جو آدمی ہے لیکن روزی کے لیے نکلتا تھا وہ بھی پچھے ہیں، جو حصے بڑھ کے تھے بزنس مین ہے وہ بھی پچھے۔ فیصل آباد کے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ، سبزیوں، پھلوں، دالوں، چاول، گھی، مسالہ جات اور دیگر اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے سے عوام سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ مہنگائی سے دکھی عوام کا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ عوامی ریلیز کے تمام وعدے صرف اور پورے کیے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ، ABN نیوز، فیصل آباد۔ بہاول نگر شہر کا باولی چوک دن کے اوقات میں اسموک کے پیش نظر جام رہنے لگا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون کی جانب سے ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی، باولی چوک کے کئی گھنٹے بلاک رہتا ہے اور ٹریفک جام رہتی ہے۔ مزید جانتے ہیں مالک مقبول احمد سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں بہاولی چوک بہاول نگر پر۔ آپ کو بتاتا چلوں یہ بہاولی چوک جو ہے یہاں پر ہیوی ٹریفک جو ہے یہاں سے شہر میں داخل ہو رہی ہے، حالانکہ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیمرہ مین کو میں کہوں گا یہ دکھائیں، یہ دیکھیں یہاں ٹریفک پولیس اہلکار بھی جو ہے یہاں تعینات کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ہیوی ٹریفک پولیس کا داخلہ جو ہے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہر میں داخل ہو رہی ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگر میں بات کروں اس چوک کے حوالے سے تو یہاں ماڈل ٹاؤن اور اسی طرح نادرہ آفس اور DC آفس کو اس باولی چوک سے جو ہے وہ راستے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ٹریفک عموماً جو ہے دن کے اوقات میں یہاں جام رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے۔ جی دیگر شہروں کی طرح وہاڑی بھی اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں ہے۔ اسموگ کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملک طاہر حسین سے۔ جی بالکل، وہاڑی میں اسموگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور جہاں پر انسان اس اسموگ کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریاں آئی ہیں آنکھوں اور سانس کی، وہیں پر چرند پرند بھی اسموگ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم وہاڑی زو میں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نواز بھٹا صاحب موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جانوروں پر اسموگ کے کیا اثرات ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جانور اور پرندے بالکل صحت مند ہیں، ہمارا ڈاکٹر ڈیلی چیک کرتا ہے، ہم جو بھی ٹریٹمنٹ ہے ساتھ ساتھ ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ عوام سے بھی گزارش ہے 17 تاریخ تک ہم نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر زو کو بند رکھا ہوا ہے، اس وقت تک تشریف نہ لائیں اگر مزید کوئی اس پہ ایکسٹینشن نہ ہوئی تو۔ جی ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ وہاڑی کے جو جانور اور پرندے ہیں وہ ابھی تک ان کی حالت بہتر ہے، ہماری ڈاکٹر چیک کرتے رہتے ہیں۔ عوام سے التماس ہے کہ وہ 17 تاریخ تک وہاڑی زو میں تشریف نہ لائیں، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت پر ہم نے اسے بند کیے ہوا ہے کر رکھا ہے۔ جی
पंजाब हुकूमत ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टियों का ऐलान किया हुआ है, लेकिन मानावाला में हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। मानावाला के स्कूल रोड पर तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे खुले हैं, जबकि CU एजुकेशन, DCO AC शेखपुरा इनके खिलाफ एक्शन लेने से कासिर हैं। मज़ीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए इक़दामात उठा रही है, भट्ठों को बंद किया जा रहा है, जो किसान फसलों की बाकियात को जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती दिखाई दे रही है। दूसरी जानब अगर मैं बात करूँ तलीमी इदारों की, तो हुकूमत ने तो 17 तारीख तक तलीमी इदारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मानावाला की बात करें तो यहाँ पर जो तलीमी इदारे हैं जो प्राइवेट बिल्कुल वो खुले नजर आएंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जितने भी इकदामात किसी काम की रोकथाम के लिए उठाए जाते हैं वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करप्शन को बढ़ावा देने के लिए करती है। कोई भी हमारे इलाके मानावाला के अंदर स्कूल बंद नहीं है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल माफिया है, वो सारे स्कूल खुले हुए हैं। और अगर उनके माँ बाप से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि स्कूल वाले कहते हैं अगर बच्चे को स्कूल ना भेजा तो हम बच्चे का नाम खारिज कर देंगे। भट्टे वाले भी इसी तरह हैं। बल्कि करप्शन माफिया हर जगह से अपने पैसे लेकर, रिश्वत लेकर सबको आज़ादी इन्होंने दे रखी है कि जो मर्जी करते फिरें। हमने तो बस करप्शन में इजाफा करना है, अपनी जेबें भरनी है। तो इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं DC साहब से, AC साहब से, शेखुपुरा से कि वो हमारे इलाके का विजिट करें। इन स्कूलों को जो मासूम बच्चे खज्जल खराब हो रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो स्कूल है बिल्कुल वो बंद करवाने चाहिए। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बिल्कुल उनमें बीमारियां जन्म ले रही हैं, वो सांस के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर आंखों का मर्ज जो है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इनका यही कहना है कि जो DC शेखपुरा है बिल्कुल वो एक्शन ले और इनको बंद करवाया जाए ताकि स्मोक के खात्मे को मुकम्मल तौर पर उससे बचा जा सके। जी भवाना और गिरदुनवा में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद THQ अस्पताल का रुख कर रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल से। जी बिल्कुल, भवाना शहर और गिरदोनवा में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो THQ अस्पताल भवाना का रुख कर रही है। मैं इस वक्त MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल साहिबा के साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा इससे बचने की क्या एहतियाती तदाबीर है? पूरे मुल्क की तरह भवाना में भी स्मोक का काफ़ी ज़्यादा राज है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड है वो हमारे बच्चे होते हैं और हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस की बीमारियां अंदर जाने से उनकी सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। अब हमारा एहतियाती तदाबीर में ये है कि हम बाहर निकलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी खुराक को बेहतर करें। हमारी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करें। उनमें माल्टे हैं, चकोतरे हैं जिनमें विटामिन C की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। हमारे जूसेस, फ्रेश जूसेस वो आप बच्चों को दें, अपने बूढ़े लोगों को दें, उनसे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो सांस की बीमारियों का रश है वो बढ़ गया है। तो मेहरबानी करें और एहतियात करें, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। घर से बहुत कम से कम निकलें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जी, आपने MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल साहिबा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। जी, ओकाड़ा में ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी और फोग के बायस तलीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं AD साबिर से। आज बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी स्मोग और धुंध का राज है। स्मोग पड़ने की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि स्मोग और धुंध का ये जो कम्बिनेशन बना है इस वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी भाईजान, बताइएगा कि आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं ज़िला उकाड़ा में भी, डिवीज़न साहिवाल में, क्या कहना चाहेंगे? उकाड़ा में स्मोक और फोग तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ हर दूसरा शहरी जो है वो गले की बीमारी में, आँखों की बीमारी में, नज़ले ज़ुकाम की बीमारी में मुब्तला होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो उसकी जहाँ पर इंतहा हो चुकी है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चेक किया जाए, ये भी इससे कंट्रोल किया जाए। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि स्कूलों को छुट्टियाँ कर दी गई हैं।
हाँ जी, शहरी की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि ये गवर्नमेंट को छुट्टियां पहले ही कर दी जानी चाहिए थी दीगर जो इजला की तरह। तो दूसरी जानब उन्होंने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं ये स्मोक का बाइस बन रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस खतरनाक स्मोक से और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी। लियाकतपुर में यूटिलिटी स्टोर आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम। आम मार्केट में घी की बढ़ती हुई कीमत से आवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी दस्तियाब न होने से शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं सैयद आमिर शाह से। जी, इस वक्त मौजूद है लियाकतपुर के यूटिलिटी स्टोर पर। यूटिलिटी स्टोर पर भी हुकूमत की तरफ से जो आवाम के लिए सब्सिडी घी है वो यहाँ पर उस किस्म की जो अशिया है वो नापीद हो चुकी हैं। घी जो आम मार्केट में 570 रुपये, जबकि यूटिलिटी स्टोर का रेट जो है वो 440 रुपये है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर घी जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते से नहीं आ रहा। इसी तरह दीगर जो अशिया है जिनको हुकूमत ने सब्सिडी की है वो यूटिलिटी स्टोर पर नहीं आ रही। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शहरी हैं, हम उनसे जानते हैं कि भी वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी देखें, मैं अभी यहाँ पर आटा और घी लेने आया हूँ। यहाँ पर ना तो घी दस्तियाब है ना ही आटा दस्तियाब है। चीनी जो है मार्केट में 125 रुपये मिल रही है, यहाँ पर 140 रुपये। तो चीनी मैं दुकान से ले लूँगा। लेकिन जैसे वज़ीर आला पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर को बहाल किया है, मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि यूटिलिटी स्टोर को जैसे बहाल किया गया है आवाम के लिए सब्सिडी दी जाए, आवाम को सहूलियत फराहम की जाए। मार्केट में तो घी है लेकिन 570 रुपये है और यूटिलिटी स्टोर पर 440 रुपये है, लेकिन है नहीं, मिल नहीं रहा। चीनी मार्केट में कम रेट है और यूटिलिटी स्टोर पे ज़्यादा है। मेहरबानी करके रेट मुनासिब किया जाए। जी, शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडी दी गई है वो अशिया फराहम नहीं की जा रही। लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो स्टोरों पर सब्सिडी वाली अशिया दे ताकि आवाम को भी रिलीफ मिल सके। जी। जलालपुर पीरवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। फलों और सब्जियों की कीमतों के साथ साथ अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा गरीब और सफ़ेद पोश तबके को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान आरिफ से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जी और फलों की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। एक इंसान अगर रोज़ मजदूरी करता है तकरीबन 400-500 लेकर घर आता है, वो अगर देखा जाए ये सब्जियां ले, सब्जियों की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं और सब्जियों के साथ साथ आप देख लें घी है और वो घी भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। मैं सीएम पंजाब और जो ये इदारों के ऊपर काबिज बैठे हैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि इन गरीबों से इनका जीने का हक रखें, मेहरबानी करें, इनकी कीमतें कम करें। एक गरीब मजदूर तबका पहले से भी परेशान है, मज़ीद परेशानियाँ बढ़ें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि महंगाई के बायस हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी बड़े मुश्किल से खिला सकते हैं। शहरी का हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब के घर का चूल्हा ठंडा कर दिया। दूसरी तरफ खानका डोगरा में इंतजामिया की नाअहली की वजह से सरकारी रेट लिस्ट पर सब्जियां खरीदना शहरियों के लिए डरावना ख्वाब बनकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, इंतजामिया नाम की कोई शय नज़र नहीं आ रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से खानका डोगरा में सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ें खरीदना एक ख्वाब बनकर आ गया। अगर सब्जी की कीमतों की बात की जाए तो सब्जी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट दी जाती है उस पर अमल दरामद करवाने में इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। हर दुकानदार का अपना रेट है और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर इन्होंने कभी सब्जी खरीदी है और सब्जी की कीमतों के हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है, क्या कहेंगे इस बात। सर ज़हनी तौर पर ही परेशान है इस गल तो आ कि मजदूरी करके भी असी सब्जी तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए कि रेट लिस्टां जिहड़ियां ने वो दित्तियां ते जरूर जांदियां ने लेकिन उहदे ते अमल दरामद नहीं किया जाता। लिहाजा वो मजबूरी के तहत जिहड़ी है ना वो सब्जी सानू खरीदनी पैंदी है लेकिन उहदे तक नहीं पहुँचा जाता, जिहदे च साडा दिहाड़ है। आपका क्या कहना है, कभी सरकारी रेट लिस्ट पर सब्जी खरीदी है? नहीं जी, रेट लिस्ट में कभी भी नहीं सब्जी मिली, कुछ भी नहीं रेट लिस्ट में मिलता है। अगर रेट लिस्टें लगी होती हैं, रेट मर्जी का लगाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर चीज़ें खरीदना इनके लिए ख्वाब बन कर रह गया है। सरकारी रेट लिस्ट तो दी जाती है लेकिन इसको अमल दरामद कराने में इंतजामिया बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। उन्होंने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया है। जी। एबीएन न्यूज़ बना मियांवाली की आवाम की आवाज़। एबीएन न्यूज़ पर हाल ही में तामीर होने वाले मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड के टूट फूट का शिकार होने की खबर नशर हुई, जिस पर इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ से।
जी बिल्कुल, ABN न्यूज़ की जानिब से आज से कुछ अर्सा कबल मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो हाल ही में तामीर किया गया, उस हवाला से खबर नशर की गई। मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड जो हाल ही में तामीर किया गया, इसके अतराफ़ी किनारे जो है वो टूट फूट का शिकार थे और मुतअद्दिद मकामात पर रोड के दरमियान में गड्ढे बन चुके थे, जो ना सिर्फ हादसात का सबब बन रहे थे बल्कि शहरियों की कीमती गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा था। ABN न्यूज़ की तरफ से जब ये खबर नशर हुई तो इंतज़ामिया हरकत में आई और इंतज़ामिया की जानिब से जो गड्ढे बन चुके थे और जो अतराफ़ी किनारे टूट फूट का शिकार थे उनको मरम्मत कर दिया गया है, जिस पर जो है वो शहरी सुख का सांस ले रहे हैं और हादसात की शरह के अंदर भी कदरे कमी वाक़ हुई है। शहरियों की तरफ से, सियासी और समाजी हलकों की तरफ से ABN न्यूज़ की इस काविश को सराहा जा रहा है और जो शहरी हैं वो ABN न्यूज़ की जो काविश है इस पर खराज तहसीन पेश करते नजर आ रहे हैं। जी, तोंसा शरीफ में तेज़ रफ्तार कार और 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, 7 अफराद जख्मी हो गए। तोंसा शरीफ इंडस हाईवे जाम के गैप पर तेज़ रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 7 अफराद को कुचल दिया। हादसे के नतीजा में 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने जख्मी होने वाले अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा मुंतकिल कर दिया, जबकि शदीद जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। खानेवाल में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। DHQ अस्पताल में मुतासरा मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का फुकदान है। शेख तारिक रिपोर्ट करेंगे। बीमारियों का बाइस बनने लगी। दूसरी जानिब जिला की सबसे बड़ी इलाजगाह DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स के नारवा सलूक और अद्वियात ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से स्मोक काउंटर तो कायम किया गया है, लेकिन काउंटर खाली होने के बाइस मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से दुश्वारी का सामना है। व्हील चेयर नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिले, कोई चीज़ नहीं मिले। बंदा उठा के ले गए बड़ी मुश्किल नाल, तो उठा के ले आया। वज़ीर पंजाब से यही दरख्वास्त है कि अगर ये इतनी अगर सहूलियत की बातें करते हैं तो सहूलियत भी देनी चाहिए। हमें किसी किस्म की यहाँ पे सहूलियत नहीं मौजूद मिली। अस्पताल में अद्वियात और शुगर की इंसुलिन लेने आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बच्चों और बड़ों की एंटीबायोटिक, बुखार, मैदे और ताकत की अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि अस्पताल इंतजामिया अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्टें अरसाल कर रही है। सुबह के खड़े हैं, अभी तक तो हमारी कापी नहीं बनने की मराइल से नहीं हम गुजरे। इंसुलिन तो बाद में मिलेगी और इंसुलिन अगर गवर्नमेंट पंजाब दे भी रही है, हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें वगैरह दी जाती है, लेकिन हमें कोई फैसिलिटीज नहीं यहाँ पर मिल रही। सुबह के खड़े हैं, कल भी आए, आज भी आए, हमें अभी तक हमारी कापी नहीं बनी, कोई सहूलत नहीं मिल रही। मैं टांगों से मुहताज हूँ, तो चलने फिरने से आवाज़ार हूँ। यहाँ सुबह का खड़ा हूँ, कोई बैठने की जगह नहीं है, लेना देना सहूलत नहीं है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकलने से परहेज़ करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन टीम के साथ शेख तारिक, ABN न्यूज़, खानेवाल। टोबा टैक्सी में मोबाइल फ़ोन से वाबस्ता दुकानदारों के आए रोज़ बढ़ते मसाइल और मुश्किलात के इजाफे के बायस मोबाइल फ़ोन यूनियन खिदमत ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया है। इस सिलसिला में निजी मार्की में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर भर से मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों की बड़ी तादाद शरीक हुए। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में मोबाइल फ़ोन से वाबस्ता दुकानदारों के आए रोज़ बढ़ते मसाइल और मुश्किलात के इजाफा के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन यूनियन खिदमत ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया है। इस सिलसिला में निजी मार्की में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर भर से मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसमें मुतफ़िका तौर पर नामजद तंजीमी ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया गया और इनको यादगारी शील्ड्स दी गई। इस मौके पर नामजद सदर राना शकील अहमद ने ABN न्यूज़ से अपनी गुफ्तगू में कहा, हम मोबाइल यूनियन में मिसाल के तौर पे अगर किसी दुकानदार को किसी की चोरी हो जाती है या कोई दुकानदार का बिजली का बिल है या कोई दुकानदार लास्ट डेट पे किराया देना है, तो हमने उसके लिए एक फाउंडेशन बनाई है। उस फाउंडेशन के अंदर हम उसको 1 मंथ के लिए, 15 दिन के लिए, जितना वो चाहेगा उसको हम क्रेडिट देंगे और वो जब उसको यूज़ कर लेगा उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी, उसके बाद वो हमें वापस करेगा। सबसे बड़ा जो हमारा क़याम है वो इस चीज़ का है। मुनक़दा तकरीब में अंजमन ताजरान टोबा टेक्सिंग, रियल स्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन, करियाना मर्चेंट एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के अहदेदारों पर मुश्तमिल वफूद और शहर भर से समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी भी शरीक हुए। इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारा जो कारोबार मोबाइल के मतलब है वो पुलिस के रिलेटेड तकरीबन हो जाता है।
तो इस वजह से जो भी कोई दोस्त परेशान होगा इंशाल्लाह हम उनसे वादा करते हैं कि अगर कोई मसला मसाइल हो तो इंशाल्लाह उससे पहले हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे और उस अपने जो दोस्त है भाई है हमारा इंशाल्लाह उसको परेशानी होने देंगे। मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों की बड़ी तादाद पर उम्मीद है कि मोबाइल फ़ोन यूनियन खिदमत ग्रुप के क़याम से इनको दरपेश कारोबारी मुश्किलात में कमी और मसाइल हल होने में आसानी होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह।